Hallelujah. Hallelujah. Give us a beautiful smile. Turn to the left, to the right. The best smile you've got for 2025. Good to see you, Brother Gyan. Bless the Lord. He's the mayor of Blacktown. 2026. Wow. We wish you a wonderful and blessed new year. Every one of you, your families and friends. Thank you for your love and prayers, well wishes. We're all journeying together. Amen. It's a win-win situation for all of us. Come on, give Jimmy a welcome as he comes up. And he's going to do a bit of translation. Last time, a lot of people came and said, Pastor, every time you preach, please get someone to interpret. Maybe my English is not so good. Hallelujah. Praise the Lord. We are so grateful, Father, to you today. This beautiful day, beautiful Sunday. We offer ourselves to you. Our hearts are ready. Our minds are alert. Blessed Holy Spirit, welcome. Great teacher, unveil Jesus to us today like never before. Take us deeper, take us higher. We're never looking back, but looking forward, Lord. There's great things that you have in store for each and every family, every person. We give you glory and honor and praise in advance for watching over your word to perform it in our lives. In Jesus' name. Let's turn to the book of Isaiah. Towards the end, chapter 66, Jimmy, if you could read verse 7, 8, and 9. Praise the Lord. आइए अपने पवित्र शास्त्र को खोले यशायाह नबी की किताब उसके 66वां अध्याय. And then we'll go over to Galatians chapter 4. और उसके बाद में हम गलतियों की ओर पढ़ेंगे. I think verse 20, Jimmy. और गलतियों का 24वां अध्याय 19 and 20. Yeah. 19 और 20 गलतियों का. तो पहले हम पढ़ेंगे यशायाह नबी की किताब उसका 66वां अध्याय. Praise the name of Jesus. 7 से 9 तक मैं हिंदी में पढ़ूंगा. उसकी प्रसव पीड़ा उठने से पहले ही उसने जन्म दिया. उसको पीड़ाएं होने से पहले ही उससे बेटा जन्मा. ऐसी बात किसने कभी नहीं सुनी? किसने कभी ऐसी बात देखी? क्या देश एक ही दिन में उत्पन्न हो सकता है? क्या एक जाति क्षण मात्र में ही उत्पन्न हो सकती है? क्योंकि सियोन की प्रसव पीड़ा उठी ही थी कि उससे संतान उत्पन्न हो गई. Let's turn our Bible to Galatians chapter 4 verses 19 and 20. गलतियों का 4था अध्याय 19 और 20 मैं हिंदी में पढ़ूंगा. हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूं. इच्छा तो यही होती है कि अब तुम्हारे पास आकर और ही प्रकार से बोलूं, क्योंकि तुम्हारे विषय में मैं उलझन में हूं. Amen. Amen. One of the blessings that you have in your life is that you know the ability to pray. And I mean, amen. एक बहुत ही अच्छी आशीष है कि हम ये जानते हैं कि हमें क्षमता है कि हम प्रार्थना कर सकें. The ability to get in the presence of God and know the heart of God. हमें यह क्षमता है कि परमेश्वर की पवित्र हजूरी में हम जा सके और परमेश्वर के मन को हम देख सके. Prayer is communication with God or fellowship with God. प्रार्थना एक ऐसा है कि परमेश्वर के साथ एक पवित्र संगति, उसके साथ वार्तालाप करने का समय. You need to develop your prayer life that you are confident that God hears your prayer. हमें अपनी प्रार्थना जीवन को ऐसे निर्माण करना है कि हम निश्चय रूपी से और विश्वासी रूपी से प्रार्थना कर सकें. But today I want to encourage us to go a bit deeper in our prayer life. परंतु मैं आज सभी को हमारे प्रार्थना जीवन में और गहराई में ले चलने के लिए मैं आवेदन आप सबको देता हूँ. Not just pray for ourselves. सिर्फ हमारे स्वयं के लिए प्रार्थना न करें. But the prayer of intercession is praying for others. परंतु दूसरों के लिए परमेश्वर की ओर प्रार्थना में लगे रहे. To know the heart of God. परमेश्वर के मन को जानने के लिए, to have an intimacy with God. क्योंकि परमेश्वर के साथ एक सुंदर वार्तालाप होने के लिए, like the Lord teaches us in the Lord's Prayer. क्योंकि परमेश्वर जैसे परमेश्वर की प्रार्थना में हमें सिखाता है To pray, our Father who art in heaven. ऐसे प्रार्थना में दिखाता है, हमारे स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में है, Hallowed be your name. तेरा नाम धन्य माना जाए. Let your kingdom come. तेरा राज्य आए. Let your will be done. तेरी इच्छा परिपूर्ण हो. On earth as it is in heaven. जैसे स्वर्ग में है वैसे धरती पर हो. We're not so much
interested, so we put our needs and our desires aside. इस समय हमारी जरूरतों को और हमारे ख्यालों को हम एक बाजू में रख दें But now we focus on His desire, और हम परमेश्वर की इच्छा की ओर अपने ध्यान को लगाएं on His plans, और उसके प्लान्स के ऊपर ध्यान को on His लगाएं purposes, और उसकी जो इच्छा पूरी होनी है उसके ऊपर हमारे ध्यान to को see लगाएं His kingdom come, उसका राज्य आए His will be done on earth as it is in heaven. और उसकी इच्छा पूरी हो जैसे स्वर्ग में है वैसे धरती पे पूरी हो One thing the cross teaches us, पर यीशु मसीह का जो क्रूस है वो हमें क्या सिखाता है it crucifies the selfishness in our life. कि यीशु मसीह ने जो क्रूस पे कार्य किया उसके द्वारा हमारा जो स्वार्थी स्वभाव है वो क्रूस पे चढ़ाया गया That God comes first. ताकि परमेश्वर सर्वप्रथम आए And we put the needs and the desires of other people और हम और दूसरों की जरूरतों और उनकी नीड्स को before परमेश्वर की ओर लाए ourselves. Before ourselves. और हमारे जरूरतों से पहले दूसरों की जरूरतों को हमारे प्रार्थना में लाए The Holy Spirit anoints us, पवित्र आत्मा हमें अभिषेक करता है take us deeper in the things of God. और परमेश्वर के ज्ञान और उसके बारे में हमें गहराई में लेके चलता He's the है one who makes Jesus real to us. और वही पवित्र आत्मा हमें यीशु मसीह के उस असलियत को दिखाता है Jesus cannot be real to you without the Holy Ghost. ओ पवित्र आत्मा के बगैर यीशु मसीह हमारे लिए असलियत के समान नहीं हम समझ सकते His job is to glorify Jesus. और पवित्र आत्मा का कार्य यीशु मसीह की महिमा करे His job is to testify of Jesus. और पवित्र आत्मा का कार्य यीशु मसीह के लिए गवाह बने His job is to form Christ in us. और उसका कार्य है कि यीशु मसीह को हमारे अंदर निर्माण करे Galatians chapter 5, you read about the fruit of the Spirit. जब हम गलीतियों को 5 अध्याय जब करते हैं तो पवित्र आत्मा की फलों के विषय में हम सुनते What हैं is the fruit of the Spirit? पवित्र आत्मा के फल क्या है It's the character of Christ. ये यीशु मसीह के स्वभाव के बारे में दिखलाता है Paul is saying to the Galatians, पौल गलीतियों की कलीसिया से कहता है because they are allowed to be distracted from Christ, क्योंकि उनको यीशु मसीह के द्वारा अलग किया गया my है little children, मेरे छोटे बच्चों of whom I travail in birth again, कि मैं प्रसव पीड़ा के समय कैसे तुम्हारे लिए जैसे प्रार्थना करता हूँ उस पीड़ा के साथ until Christ is formed in you. ताकि यीशु मसीह तुम्हारे अंदर निर्माण होए It takes prayers and intercession वो प्रार्थनाएं और परमेश्वर के साथ वार्तालाप होए to see you grow in Christ, कि आप लोग यीशु मसीह में बढ़े to see the church grow. कि परमेश्वर की कलीसिया यीशु मसीह में बढ़े You read about the history of the moves of God, आपने परमेश्वर के इतिहास को पढ़ा होगा उसके महान कार्य के बारे में revivals, awakenings, and visitation. जहाँ कहीं उत्तेजना होती है जहाँ कहीं परमेश्वर की हजूरी आती है They don't just come and happen. ये ऐसे ही आते होता नहीं है No, they happen because men and women who press into God, क्योंकि कई परमेश्वर के लोग हैं जो लगातार प्रार्थना में लगे हुए होते हैं cry out to God in prayer and fasting. और वे परमेश्वर की ओर दोहाई लगाते हैं उपवास और प्रार्थना के साथ We're not interested in the things of this world, वे इस दुनिया की बातों में उनका मन नहीं लगता but they're interested in the will of God परंतु वे परमेश्वर की इच्छा में लगातार and the लगे रहते purposes हैं of God और परमेश्वर की हजूरी के बारे में to birth revivals and awakening. और ताकि एक नई रिवाइवल और जन्म ले Glory to God. This is what we're looking at tonight. और इसी Today, विषय में आज इस सुबह के अवसर में हम देख रहे हैं as we start off in this journey of prayer and fasting, जैसे हम इस प्रार्थना और उपवास की 21 दिन के सभा में है I encourage you to grow deeper in your prayer life. मैं आपको उत्तेजन देना चाहता हूं कि आपके प्रार्थना जीवन में और गहराई में जाए Could you be a person that God trusts? आप एक ऐसे व्यक्ति बने जहां परमेश्वर आपके ऊपर भरोसा रख सके I trust this sister so and so. और ऐसा कह सके कि मैं इस बहन के ऊपर भरोसा I रखता trust हूं brother so and so. मैं इस भाई के ऊपर ऐसा भरोसा रख सकता हूं Because they know my heart. क्योंकि वे मेरे मन को जानते हैं They're willing to pay the price. और जो कीमत है वो चुकाई हुई है They fast and pray and cry out to me. जब हम प्रार्थना और उपवास के साथ परमेश्वर को दोहाई देते In a हैं way, partnering with Holy Spirit और जब हम ये पवित्र आत्मा की सहभागिता में आगे चलते हैं to bring about the purposes of God ताकि हम परमेश्वर के उस कार्य को उसकी इच्छा को हमारे जीवन में ला into this सके world. ताकि इस जगत में ला सके Could you be that person, my brother? क्या आप वो व्यक्ति बन सकते हो Could you be that person? क्या आप वो व्यक्ति बन सकते हो He's not looking for a person with ability, वो ऐसे व्यक्ति को नहीं देखता जिसके पास कार्य क्षमता है but he's looking for a person with humility. परंतु वो ऐसे व्यक्ति को देखता है जिसके पास नम्र He's स्वभाव looking for है a person with availability. वो ऐसे व्यक्ति को देखता है जिसके पास उसके लिए समय है Who'll be able to say like the prophet Isaiah,
जो कोई ऐसे परफेक्ट यशायाह नबी के जैसे कह सकता है? When God asked him, who shall we send? जब परमेश्वर ने उससे पूछा कि हम किसे भेजें? Who shall go for us? कौन हमारे लिए जाएगा? He put his hand up and said, here I am, Lord. और यशायाह नबी ने अपने हाथ को ऊंचा करके कहा, ये मैं यहाँ हूँ प्रभु, मुझे भेज। Amen. Amen. I pray that every member of AICC मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि ये AICC कलीसिया के हर एक मेंबर would catch the spirit of Isaiah. ओ ये यशायाह नबी की तरह अपने उस पवित्र आत्मा को थाम ले। There's a willingness in your heart. अपने मन के अंदर एक इच्छा है Yeah, I'm going to take time. कि मैं समय लूंगा I'm going to seek God और मैं परमेश्वर की ओर like देखूंगा never before. और उसके आगे आऊंगा I'm going to partner with you, Holy और Spirit, मैं पवित्र आत्मा के साथ सहभागी होऊंगा to birth things in the Spirit, क्या कि आत्मा में नए बातों को जन्म to दूंगा bring forth और परमेश्वर की उस बातों को आगे लाऊंगा through travail and labor, ताकि मैं मेहनत करूंगा और परमेश्वर में लगातार बना रहूंगा through anguish and vehement cries, और हर एक पुकार के द्वारा हर एक रोने के द्वारा मैं आऊंगा through groaning in the Spirit, और आत्मा में परमेश्वर की ओर रोते हुए मैं आऊंगा that God will trust me, ताकि परमेश्वर मेरे ऊपर भरोसा कर सके partner with Him. और मैं उसके साथ सहमत रहकर We want to see change in Sydney. हम एक बदलाव सिडनी शहर में लाना चाहते We want हैं to see change in our nation. हम हमारे इस ऑस्ट्रेलिया देश में एक बदलाव देखना चाहते We हैं want to see change in our church. हम हमारे कलीसिया में एक बदलाव देखना चाहते हैं It comes with people who are willing to pay the price. और ये बदलाव तभी आ सकता है जब लोग एक मन से आएंगे और विश्वास करेंगे When Zion travails, जब सियोन प्रसव पीड़ा के समान रो रही थी when God's people travail in जब labor, परमेश्वर के लोग रो रहे थे they shall bring forth children. और वे आने वाले दिनों में नए बच्चे को जन्म देंगे Or shall I say, when AICC travail, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ AICC कलीसिया अगर प्रसव पीड़ा के समान परमेश्वर की ओर रोए when AICC labors, और जब AICC प्रसव पीड़ा के समय परमेश्वर की ओर रोए through pain and discomfort in the Spirit, और आत्मा में भरते हुए हर एक तकलीफ और हर एक दुख से आगे बढ़े we can bring forth amazing things for us. तो हम हमारे कलीसिया के लिए बहुत ही अद्भुत बातों को ला सकते हैं If you desire 2026 to be an amazing year, अगर आप इच्छा करते हैं कि 2026 आपके लिए एक आशीषित का साल हो we can birth things through our needs. तो हमारी जरूरतों के द्वारा हम नई अद्भुत बातों को ला सकते हैं People cry out to God, ओ परमेश्वर की ओर हम रोए not satisfied with the status quo. ओ जो कोई हमारा परिस्थिति है सोसाइटी में उससे हम We're blessed to be living in Australia. हम आशीषित हैं इस देश में रहने के लिए I always say, for us who come from overseas, मैं हमेशा कहता हूँ जब हम दूसरे देश से इस देश में जब आए welcome to Hotel Australia. और हमें सीधा स्वागत कर दिया गया होटल में रहने के लिए Praise God for the मैं blessing. परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूँ Beautiful suits, Pastor John. और अच्छे कपड़े पहनने के लिए मौका मिलता है Shoes on our feet, और अच्छे जूते पहनने के लिए clothes on our back, और अच्छे हमारे बैगों में Food on अच्छे the कपड़े table. और हमारे मेज के ऊपर खाना education for our children, और हमारे बच्चों के लिए शिक्षण है a bit of paisa in the bank, और हमारे लिए सभी कुछ उपलब्ध है a great medical system, और अच्छा एक मेडिकल सेवाएं भी है doctors and nurses, और हर एक डॉक्टर और नर्स के साथ blessing after blessing. आशीष के बाद आशीष आशीष के बाद आशीष But I want to say, परंतु मैं एक बात कहना चाहता हूँ God has a higher purpose. ओ परमेश्वर इन कई बातों से बहुत ही महत्वपूर्ण है Don't just be caught up with the blessing. आशीषों में ना खोए रहे Be caught up with the blesser. ओ वो जो आशीष करने वाला है उसके साथ नाता बनाए रखे Be involved in his heart. ओ उसके मन को जाने Yes, thank God for the blessing. ओ परमेश्वर को उस आशीष के लिए Father, धन्यवाद जरूर दे Father, we thank God for the blessing to live in ओ Australia. परमेश्वर उस धन्यवाद देते कि हम रास्ते पे सोते नहीं है But we want to see your heart. परंतु हमें तेरे मन को देखना Your है kingdom come. कि तेरा राज्य आए You brought us from the subcontinent. तूने हमें उस प्रदेश में से You इस brought देश us में from लेके आया Fiji, brought us from Fiji and the islands. और तूने हमें फिजी आइलैंड से We want वहां to से see लेके your आया kingdom come. ओ ताकि हम तेरे राज्य को देख सके Let your will be done. ताकि तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो People saved. लोगों ने ऐसा कहा है Chains of addiction broken. वो जो एडिक्शन होता है उसे तोड़ना है Marriages healed.
ओ जहाँ शादियाँ एकजुट हो जाती है, relationship healed, ओ जहाँ नाता चंगाई पाती है, no longer bondage to drugs. ओ कोई ड्रग्स की और नहीं, नशे We में want to डूबे। see your power. और हमें तेरी इच्छा को देखना है, तेरी सामर्थ को We देखना want है, to see your glory. हमें तेरी महिमा को देखना है। But God is looking for a man ओ परंतु परमेश्वर ऐसे मनुष्य को ढूंढ रहा है and looking for a woman. और ऐसे बहनों को ढूंढ रहा है। And that's when you put up Ezekiel chapter 22 verse 30. ओ हम इज़ीकेल नबी की किताब उसकी 22वें अध्याय को देखें। Thank you, Daisy. Come on, let's give a hand to Brother Jim. Praise God. It's a great thing. Where's Pinda? Pinda, are you here? Pinda, not here. Praise the Lord. God bless. इज़ीकेल chapter 22 22 verse 30, please. God was about to bring judgment. परमेश्वर इसके ऊपर न्याय लाने वाला था। Listen to what he says ध्यान से सुने यहाँ क्या लिखा हुआ है। before judgment. उस न्याय के पहले क्या परमेश्वर ने लिखा है। So I sought for a man मैंने ऐसे मनुष्य को ढूंढा among them उनके बीच में who would make a wall जो बाड़े को सुधारे and stand in the gap और देश के निमित्त on behalf of the land, और देश के निमित्त मेरे सामने ऐसा खड़ा हो that I should not destroy it, ताकि मैं उनका नाश न करूं, but I found none. परंतु ऐसा कोई न मिला। 2 Chronicles chapter 69, दो इतिहास उसका 6 और 9वीं अध्याय, it says that the eyes of the Lord run to and fro, वो वहां वैसा लिखा हुआ है परमेश्वर की आंखें चारों ओर घूमती फिरती रहती है, seeking that he may show himself strong वो उन बातों को ढूंढती है on the behalf of those whose hearts are perfect towards him. जिनके मन परमेश्वर की ओर सीधे और सरल है, उनको परमेश्वर की आंखें ढूंढती है। You see, God doesn't use angels to preach the gospel. हमें इस बात को जानना है कि परमेश्वर स्वर्गदूतों को सुसमाचार के लिए इस्तेमाल नहीं करता, Because angels have never been redeemed. क्योंकि स्वर्गदूतों को कभी भी हम जैसे खरीदे गए वैसे उन्हें खरीदा नहीं गया है। Yes, he uses angels to bring about his word in answers to our prayers. और स्वर्गदूतों को हमारे प्रार्थना का उत्तर देने के लिए वे उन्हें इस्तेमाल करते हैं, But he uses human beings परंतु वो मनुष्य को इस्तेमाल करता है to bring the gospel. उसके सुसमाचार बतलाने के लिए। What kind of man is he looking for? वो कैसे मनुष्य को ढूंढ रहा है, What kind of woman he is looking वो for? कैसे बहनों को ढूंढ रहा है। I think it's like the heart that said of David in Acts chapter 13:22. जैसे प्रेरितों का काम 13 और 22वें अध्याय में जो दाऊद का मन है उसी समान, As his eyes is scanning the world. जैसे परमेश्वर की आंखें चारों ओर घूमती फिरती रहती है। He said, I found David, the son of Jesse, और परमेश्वर कहता है यिशै के पुत्र दाऊद को मैंने पाया, a man after my own heart, वो जो मनुष्य मेरे मन के पीछे हमेशा लगा रहता है, who will do all my will. और जो हमेशा मेरी इच्छा को पूरी करते रहता है। We know we have a self-will, हमें जानते हैं कि हमारी स्वयं इच्छा है, but God is looking for people who would lay aside their self-will. परंतु परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है जो अपनी स्वयं इच्छा को छोड़ के परमेश्वर की इच्छा को पूरी Who करे। would say like the Lord Jesus in the Garden of Gethsemane, और जैसे यीशु मसीह ने गतसेमने बगीचे में जैसा कहा था उसी समान, Father, if it is possible, let this cup pass from me. ओ परमेश्वर अगर ये मुमकिन हो सकता है तो इस कटोरे को मुझसे दूर हटा, Nevertheless, not my will, ताकि मेरी इच्छा नहीं but yours be done. परंतु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो You सके। see, the cross crucifies the fleshly will of man. हम देखते हैं कि जो क्रूस पे है, जो मनुष्य का शरीर है उसकी स्वयं इच्छा को क्रूसित करता है। He's looking for a man and a woman. Young people, he's looking for young people. वो नौजवानों को देख रहा है, Maybe they're still in Sunday school. शायद वे संडे स्कूल में अभी भी शिक्षा ले रहे Maybe हैं, some of them are still in the womb. और कोई कई माँ की कोख में है, Maybe some of them are yet to be conceived. और कई लोग आने वाले हैं। He's looking for men and women who are after his heart. वो मनुष्य को, वो उस भाई और बहनों को देख रहा है जो He will परमेश्वर say, के मन के not my पीछे है। will, but yours be done. वो कहता है हमारी स्वयं इच्छा नहीं परंतु परमेश्वर Prepare- तेरी इच्छा पूरी हो। Prepare to pray and fast and seek the face of God. जब हम प्रार्थना और उपवास करें और परमेश्वर के मुख की ओर भागे, Day and night, दिन रात, without food, अब बिना कोई भोजन के without the essentials of life.
और इस जगत के सारे बातों को छोड़ते हुए but they care more about the heart of God. परंतु हम परमेश्वर के मन की ओर ध्यान लगाते His हुए reputation, और उसके विचारों के लिए His plans and purposes. और उसकी सारी योजनाओं के लिए, उसकी सारी इच्छाओं के लिए Our prayer is AICC will never be the same again. हमारी यही प्रार्थना है कि AICC वही ना रहे। Men and women who are prepared to bow the knee, ओ भाई और बहन जो अपने घुटनों पे जाने के लिए तैयार है, take time, जो अपना समय निकालने के लिए तैयार है, go through birth pain, और जो प्रसव पीड़ा से उस दर्द से बीतने के लिए तैयार है, because they want to see the kingdom come. क्योंकि वो चाहते परमेश्वर के राज्य आए, His will be done. ताकि उसकी इच्छा इस जगत में पूरी हो। Could you be the man? क्या आप वो भाई बन सकते हो? Could you be the brother or the sister? और क्या आप वो बहन बन सकती हो? I'll have that one. I'll have that one. क्या परमेश्वर ऐसा कह सकता है, मैं इसे ले सकता हूँ, मैं इन्हें ले सकता हूँ? People who don't wave around their reputation. जो कोई अपनी परिस्थिति स्टेटस को नहीं झंडे की तरह लहराते, Their giftings and talents and abilities, और वो अपने हर तालंतों को, अपनी हर क्षमता को दे देते but हैं, who are humble and available for God. और हम परमेश्वर के लिए नम्र बन के हुए परमेश्वर की उपस्थिति के लिए हम अपने My आप को little सौंप children on whom I travail in birth again. ओ जो मनुष्य और जो भाई और बहन जो प्रसव पीड़ा की उस पीड़ा के समान परमेश्वर की ओर दुआई देते हैं। If you are not happy with anything that's happening in the church, and I pray that's not true, अगर कलीसिया में आप कुछ ऐसी बातों से आप आनंदित नहीं हो, मैं विश्वास करता हूँ ये बात गलत है, let's get on our knees तो हम हमारे घुटनों पे आए and fast and pray. और हम प्रार्थना और उपवास करें, Rather than talk and gossip. ओ बिना कोई कुड़कुड़ाहट के। No, we want to see the hand of God move. अगर हम परमेश्वर के उस We want to see the hand of God move in our life, अगर हम उसके हाथ को हमारे in जीवन our में देखना marriages, चाहते in our marriages, और हमारे विवाह संबंध में, in our finances. वो हमारे आर्थिक परिस्थिति में, I am amazed और मैं आश्चर्यचकित होता हूँ that sometimes in Christian marriage, कई बार मसीह विवाह में when they vow before God जब वे परमेश्वर के सामने अपने and भाव को लेते हैं before each other, और एक दूसरे के सामने खड़े रहते हैं until death do us part. और ऐसा कहते हैं कि मृत्यु हमें अलग करे तब तक, Somehow that vow doesn't mean anything. और जब तक कुछ समय उस वायदा पूरा अर्थ नहीं होता है, Vowing to God, जब वे वायदा परमेश्वर की ओर लेते हैं until death do us part. ताकि मृत्यु हमें एक दूसरे को अलग करे। Come on, brothers and sisters, भाई और बहनों, let's get on our knees this year. आइए हम इस साल अपने घुटनों पे जाएं। Let this month be a month that you step deeper into the things of God. ये महीना परमेश्वर के कार्य में और गहराई में जाने का हो हमारे लिए। Let's have a look at Romans 8. हम रोमी उसका 8वां अध्याय देखें। Groaning in the spirit. This creation is groaning. Can anybody groan out loud? I mean, let's groan out loud. You know when you hit a bad shot, you groan. I'm not groan. Oh, come on. When I hit a bad shot, I said, ah! I'm not articulating in words, मैं नए शब्दों को नहीं भर रहा हूँ, but my growing, I'm communicating something. परंतु मेरी दोहाई कुछ वार्तालाप परमेश्वर से करती है। The creation was beautiful सृष्टि बहुत ही सुंदर थी on the first 6 days. पहले 6 दिन के लिए, At the end of each day, God would say, that was good. और हर एक सृष्टि के दिन के अंत में परमेश्वर कहता था बहुत अच्छा है, At the end of the 6th day, परंतु उस 6ठे दिन के अंत में He said it was very good. और परमेश्वर ने कहा बहुत ही अच्छा है। What time do we finish, Pastor? We finish at 3 o'clock. Before there was any choir, क्वायर होने से पहले God stood back and looked at His beautiful creation. परमेश्वर ने उसकी सृष्टि की ओर देखा Man was beautiful. और मनुष्य का निर्माण हुआ था Beautiful. और बहुत ही सुंदर था, He praised Himself. और परमेश्वर ने स्तुति की That was very good. कि वो बहुत ही अच्छा है। How many praises are in the house? हमारे घर में कितने आप Come on, परमेश्वर के लिए let me आराधना hear your voice today. वो ताकि हम उसकी आवाज को सुन सके। Praise be to our God. परमेश्वर की महिमा हो, To see the beautiful creation. हम परमेश्वर की उस महान सृष्टि को But you देखते know हैं। the story, the consequences when man sinned. जब हम देखते हैं कि जब मनुष्य ने पाप किया तो उसका प्रतिफल क्या हुआ, God brought forth judgment. और परमेश्वर ने न्याय को उस बीच में लाया।
Desi, could we look at Romans 8, please, my friend? Notice also here, go back to 24, if you would. हम रोमी 8 और 24 की ओर देखें. I won't take long. It says there that the whole creation is groaning. The whole creation, you go around to see the trees, the flowers, the animals. They are groaning. Why? Okay, go next verse. 25. Okay, go back to 20. Sorry. No, I don't want you to think that I'm making it up. Thank you, Jim. For the creation was subject to futility, not willingly, but because of him who subjected it whole. Notice verse 22. 22, Romans yeah. chapter 8 verse 22. Yeah. For we know, thank you, Jimmy, for we know that the whole creation groans and labors with birth pangs until now. रोमी 8:22 यूं कहता है क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर करहाती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है. Waiting for the manifestations of the sons of men. ताकि परमेश्वर के उस मनुष्यों को जन्म लेने के लिए. Okay, now go to 26, please. Desi, thank you. Likewise, groaning. इसी रीति से The Spirit also help us in our weaknesses. आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में सहायता करता है. Or in our inability to pray with results. क्योंकि हम प्रार्थना अपने स्वयं से Remember नहीं I कर said सकते. before, God is looking for people who are humble. जैसे मैंने कहा परमेश्वर उन लोगों को देखता है जो अपने आप को नम्र करने के लिए तैयार If you है. want the Holy Ghost to move in your life, come before you with weakness. अगर पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करना चाहते हैं तो परमेश्वर के आगे नम्र हो Oh, जाइए. blessed Holy Spirit, I am weak, but you are strong. ओ हम ऐसे कह सकते हैं पवित्र आत्मा तू सामर्थ्य है पर मैं I कमजोर हूँ. come humbly before you today. और मैं नम्रता से तेरे सामने आता हूँ. I haven't got the answers. You know the answers. मेरे पास उत्तर नहीं है पर पवित्र आत्मा तेरे पास उत्तर I है. am weak, but you are strong. मैं कमजोर हूँ पर तू सामर्थ्यशाली है. I don't even know how to pray as I ought, but you do. मैं प्रार्थना करना नहीं चाहता परंतु पवित्र आत्मा तू जानता है प्रार्थना करने के लिए. We do not know what we should pray for as we ought. क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए. You see, the Holy Spirit is asking us to come humbly to Him. पवित्र आत्मा यूं कहता है कि नम्रता पूर्वक उसके सामने आए. He is living inside of you. वो आज हमारे अंदर वास करता है. He is our helper. वो हमारा सहायक है. He is our intercessor. वो हमारे बीच में मध्यस्थी He is करता है. our strengthener. वो हमारी सामर्थ्य देने वाला He है. is our standby. वो हमारे संग खड़े रहने वाला है. He is our advocate. वो हमारे लिए न्याय लड़ने वाला है. Like a defense attorney in a courtroom. और जैसे न्यायालय में डिबेट होता है उस समान. Defends us against all the accusations and और lies. पवित्र आत्मा हर एक उस अपराध को नष्ट करने के लिए सामर्थ रखता है. Likewise, the Holy Spirit helps us in our weakness. He is also groaning. परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहे भर भर के हमें प्रार्थना करने की रीति को करना सिखाता है. Can you hear Him groan in your heart? क्या आप पवित्र आत्मा को आपके मन के अंदर करहाते हुए आप सुन सकते हो? And you are willing to partner with Him और क्या आप उसके साथ सहभागिता लेना चाहते हो? to intercede and pray ताकि हम मध्यस्थी ले सके और प्रार्थना दोहाई के साथ in दे the सके. Spirit, आत्मा में भर के हुए however long it takes, चाहे जितना भी समय लगे, whatever it takes. चाहे कुछ भी उसके लिए हो. He's the one who's all-knowing. वही है सर्वज्ञानी. He's the one who's all-powerful. वो सर्व सामर्थी है. He's the one who's omnipresent. वो सर्व जगह उपस्थित है. So when you connect with Him and you pray in the Spirit, जब हम आत्मा में भर के हुए प्रार्थना और दुहाई देते हैं you are praying according to the perfect will of God. ताकि हम परमेश्वर की इस इच्छा के अनुसार प्रार्थना Verse करते हैं. 27 says, but He who searches the hearts, God the Father, क्योंकि 27 कहता है जो कोई मनों को परखता है knows what the mind of the Holy Spirit is. वो जानता है कि परमेश्वर के मन क्या है. For He makes intercession for the saints. क्योंकि वो विश्वासियों के लिए प्रार्थना विनती करता है. Notice, according to the
will of God. हमें ये जानना है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। Oh, AICC, let's go a bit deeper in our prayer. AICC कलीसिया हमारे प्रार्थना जीवन में और गहराई में चले। If you watch movies, ask the Holy Spirit to stop you watching those movies. अगर आप मूवीज देखते हो तो पवित्र आत्मा से कहे कि मुझे सामर्थ्य दे कि मैं मूवीज ना देखूं। Because the enjoyment that you receive is only just for you. और ताकि जब हम मूवीज देखते हैं जो आनंद मिलता है वो सिर्फ हमारे लिए है। If you use that time in laboring and groaning and praying, अगर उस मूवी देखने का समय हम प्रार्थना में दोहाई देकर हाथे रहे तो partnering with Holy Spirit to bring forth, और पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता होते हुए नए वस्तुओं को लाए bring forth change, और एक नया बदलाव लाए bring forth awakening, और एक नई जागृति लाए bring forth life. और एक नया जीवन लाए। My little children of whom I travail in birth again, वो ऐसे कहता है जैसे प्रसव पीड़ा में जो दर्द के द्वारा जो गुजरती है until Christ be formed. वैसे दर्द के द्वारा हम परमेश्वर की ओर Oh, दुआएं दे। when Christ is formed in us, जब यीशु मसीह हम में है it is a beautiful church. ये एक बहुत ही सुंदर कलीसिया It's है, a powerful church. एक सामर्थ्यशाली कलीसिया है It is a loving church और ये प्रेम भरी कलीसिया है because they are displaying the qualities of Christ. क्योंकि वो यीशु मसीह के खूबियों को दिखलाती है। Verse 28, we use this verse quite a lot. और रोमी 8:28 कई बार हम लोग हमारे प्रार्थना में इस्तेमाल करते हैं। Romans 8:28 says, and all things work together for the good to them that love you. और सारी बातें मिलकर भलाई के उत्पन्न करती है। You hear Christians quote this verse, especially when bad things happen. कई बार मसीह लोग इस आयत को दोहराते हैं जब भी उनके साथ कुछ बुरी बातें होती है। God is able to turn out bad things in good. No. परमेश्वर इन आयत के द्वारा उस बुरी बातों को अच्छा नहीं करता है। All things work together for the good. सारी बातें मिलकर जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए अच्छी होती है। Because you partnered with Holy Spirit in prayer. क्योंकि आप पवित्र आत्मा के साथ प्रार्थना में सहभागी हुए हैं। In laboring, in groaning, और दुहाई देते हैं। in crying out to God. और परमेश्वर से रोते हैं। Not my will, but yours be done. ताकि हमारी स्वयं इच्छा नहीं परंतु परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो। Let your kingdom come. ताकि तेरा राज्य आए। Could you be the man? क्या आप वो भाई बन सकते हो? Could you be the woman? क्या आप वो बहन बन सकते हो? Could you be the young person ताकि परमेश्वर आपकी ओर देखे। that God is looking for? परमेश्वर देख रहा है। Would you say today, here I am, Lord. क्या आप आज ये कह सकते हो मैं यहाँ हूँ Send परमेश्वर me. Send me. और मुझे भेज Use me. और मुझे तू इस्तेमाल कर तेरी महिमा के लिए Anoint me. और मुझे अभिषेक कर। Would you stand up and I'll pray for you? आप खड़े रहे मेरे साथ मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। Father, I thank you for this beautiful day. Thank you for this beautiful month. We set it aside to seek your face. We want to hear your voice. We want to see your face, for your voice is sweet and your face is lovely. Draw us closer to your heart. We want to know your heart, your plans, your purposes, your desires. Lord, let your kingdom come. I pray that you bless your people, those who are yielded to you. Forgive us for being selfish, for being so self-focused. Now let the focus be on you. Jesus, as Auntie Suraj encouraged, we love you, we adore you, we worship you. Bless your people, I pray. Thank you for your goodness. Thank you for watching over this word over us. In Jesus' name, amen. Praise God. Hallelujah. Thank you, Pastor. Always remember, Holy Spirit is a must. पाक रूप हमेशा हमारे साथ रहना है। अभी head knowledge हमारा बहुत हो, नहीं? We can be full of Bible knowledge, but without Holy Spirit everything is dry. हम कितना भारी प्रेयर वॉरियर्स हो सकता है यदि पाक रूप नहीं है तो कुछ भी नहीं है। Always pray that we be empowered by the Holy Spirit. I'll call upon Pastor Andrew to come and say the benediction, and after that we'll go and have a fellowship tea. Let us pray. हम लोग प्रार्थना करें इसमें। स्वर्ग पिता परमेश्वर, प्रभु आपके उपस्थिति में हैं हम।
हे परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए, और जिस तरह से पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया, वचन के द्वारा हमें उत्साहित किया गया। हे परमेश्वर, हम जानते हैं कि तुम्हारा पवित्र आत्मा के बिना हमारे अंदर कुछ भी नहीं और कुछ भी काम हम नहीं कर सकते जब तक पवित्र आत्मा की अगुवाई और अभिषेकता ना हो। हे प्रभु, हम ये विनती करते हैं, जैसे ये साल शुरू होता है, प्रभु हमारा जीवन ऐसा कर, हमें से हर एक के जीवन को ऐसा कर कि हम तुम्हारे खोजी बनेंगे, तुमको खोजेंगे, ढूंढेंगे कि परमेश्वर का आत्मा किस तरह से हमें भर सके। और प्रभु, और ये जो प्रार्थना सभाएं रहेगी परमेश्वर, और जो उपवास का समय रहेगा, ये इस तरह का रहे कि जो हमें मदद करे, आत्मिक रीति से हम बढ़ सके और तुम्हारे राज में प्रवेश करने के लायक तैयार हो सके। प्रभु परमेश्वर, यही हम विनती करते हैं कि हर एक भाई, हर एक बहन, सभी को मदद कीजिए प्रभु, कि आप में वो बढ़ते जाए। ये विनती करते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से।